everyone. I hope you all are fit and fine. So, welcome to my channel, that is Maths by Sakshi. Before we start our video, please subscribe my channel if you are new to my channel, and please press the bell icon for new updates or for our new videos. This whole video is all about class 8th, and I'm going to start chapter rational number of class 8th. ठीक है? So this is module 1. In module 1 we are going to learn about what is rational numbers, properties of addition and subtraction. Okay, so let's start our video. What are rational numbers? Rational numbers can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0. रेशनल नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? P अपॉन Q के फॉर्म में, डेट इज P इज न्यूमरेटर एंड Q इज डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के फॉर्म में हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर Q क्या है? आपका डिनोमिनेटर है जो कि 0 नहीं होना चाहिए. ओके, इट मीन्स Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. Q 0 हमारा नहीं होना चाहिए. ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. P एंड Q क्या है हमारे? बोथ इंटीजर्स हैं. ठीक, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ नंबर्स वेयर होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स. नेगेटिव्स और होल नंबर्स का कलेक्शन होता है इंटीजर्स. ठीक है, तो P और Q आपके इंटीजर्स होते हैं. P इज द न्यूमरेटर एंड Q इज द डिनोमिनेटर. रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज P अपॉन Q, और वी कैन से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और डिनोमिनेटर हमारा क्या? 0 नहीं होना चाहिए. See from this chart, natural number starts from 1, whole number starts from 0. ठीक है, and integers are negative and positive both numbers. So natural number and whole number both are included in integers. Integers, whole number, natural number, these three are included in rational number. So rational number represent in the form of fraction. Okay, what is a rational number? See, A upon B is in the form of rational number, that is P upon Q. Here A and B both are integers. A and B दोनों ही क्या हैं? Integers हैं. Where B is not equals to 0, that means denominator will not be a 0. Rational number 5, this is 5. हम 5 को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, that is 5 upon 1. मिक्स फ्रैक्शन -1 2 अपॉन 5. मिक्स फ्रैक्शन को अब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 प्लस 2 डेट इज -7 अपॉन 5. नाउ 0.25 डेसिमल को अब हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0.25 पॉइंट रिमूव होगा, अपॉन में 100 आएगा, and 25 1 is 25 and 25 4 is 100. So 1 upon 4. 1 upon 4 is the fraction form of 0.25. Okay. Now 0 as rational number. 0 is divided by any integer, result in the rational number 0. अगर हम 0 से कोई भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलने वाला है? 0. सो 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. यस, 0 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर 0 कहाँ लिखा जाएगा? न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर में हम 0 को लिख सकते हैं, डेट इज 0 अपॉन Q, 0 अपॉन 1. ठीक है, न्यूमरेटर में हम 0 लिख सकते हैं, बट डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता है. Therefore 0 is also a rational number. That's why 0 हमारा एक रेशनल नंबर है.
0.11, 0.9, 0.-3, etc. These all are rational numbers and these all are represented in P upon Q form, that is a fraction form. Now, operations on rational number. First is addition of rational number. हम कैसे एडिशन करेंगे रैशनल नंबर का? सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं एज इट इज़ हमें ऐड करना है. ओके, सी इफ़ x एंड y आर रेशनल नंबर्स, x एंड y दो रेशनल नंबर हैं, देन x प्लस वाई इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. तो दोनों ही रेशनल नंबर का सम भी क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा. सपोज x एंड y आर टू रेशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर. both the rational numbers have same denominator, that is -2/3, that is x, y 4/3. Here both the denominators are same, so simply हम इसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. that is -2 + 4, minus plus, that is minus, right? So 2/3 is the correct answer. Okay, and this is also in the form of a rational number. But if both the denominators are different, so having a different denominator, अगर हमारे पास दोनों ही रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, then what we have to do? See, 3/5 plus 5/7. Here both the denominators are different, so first we have to take the LCM. See, 5, 7, right? 5 ones are 5, 7 will remain same, then 7 ones are 7, right? And 5 sevens are, that is 35. So the LCM of 5 and 7 is 35. Okay, now 35 is the LCM. 5, how many times 35 comes in the table of 5? That is 7 times. 7 into 3, and 7 में 5 times आता है 35. 5 into 5, right? So 7 3s are 21 and 5 5s are 25. 21 plus 25 upon 35, that is 46/35. And 46/35 is also in the form of a rational number, that is also a rational number. अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं और हम सम कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमें किस फॉर्म में मिलने वाला है? रेशनल नंबर के फॉर्म में मिलने वाला है. Now the properties of addition of rational number. Now there are some properties also. First is closure property. The sum of two rational numbers is a rational number. अगर हम दो रेशनल नंबर का सम कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर. अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है इसे. सी एग्जाम्पल 1/4 + 1/2. यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? दोनों ही रेशनल नंबर के डिफरेंट हैं. तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया. 4 and 2 का एलसीएम क्या आता है? 4. नाउ यू हैव टू सॉल्व 4. 4 ones are 4 and 1 into 1 प्लस 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 times. तो 2 ones are 2. 1 into 1 plus 2 into 1, that is 2, and 2 plus 1 that is 3/4, which is a rational number. Thus, if A and B are two rational number, then A plus B is also a rational number. This is the closure property. Second property, commutative property. Two rational numbers can be added in any order to get the same sum. अगर हम दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है. इट मीन्स अगर हम रेशनल नंबर्स की दो रेशनल नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं देन आफ्टर भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा. सी a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी. यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर c अपॉन डी है, राइट? a अपॉन बी एंड दिस इज a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, राइट? अब हमने यहाँ पर क्या किया? दोनों ही रेशनल नंबर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है. देन आफ्टर भी हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है. सी फ्रॉम द एग्जाम्पल -3/5 plus 2/4. This is LHS and RHS is 2/4 plus -3/5. हमने यहाँ दोनों रेशनल नंबर की पोजीशन को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. नाउ LCM of 5 and 4 is 20. LCM क्या आता है 5 and 4 का? That is 20. Okay. Now 5 की टेबल में 20 कितनी टाइम्स आता है? 4 टाइम्स. तो 4 into -3, राइट? प्लस 4 के टेबल में 5 टाइम्स आता है तो 5 into 2. 4 3s are 12
-12 and 5 2s are 10 and minus plus is minus, so -2 upon 20 and lowest form में से चेंज करेंगे तो 2 1s are 2 and 2 10s are 20, that is -1 upon 10 आ रहा है हमारा LHS में. नाउ कम टू द RHS. अब हमें RHS भी देखना होगा कि LHS और RHS जब तक इक्वल नहीं आएगा तब तक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होगी. नाउ फॉर RHS 2 upon 4 प्लस -3 upon 5. अगेन 4 and 5 का LCM क्या आएगा 20. सो 20 इज द LCM. सो 4 के टेबल में 25 टाइम्स आता है तो 5 इंटू 2 प्लस एंड 5 के टेबल में 4 इंटू -2. So 4 into 2 that is -12 and 10 minus plus that is minus. So -2 upon 10 simplest form में चेंज किया -1 upon 10. So LHS equals to RHS. यहाँ पर LHS में भी हमें -1 upon 10 मिल रहा है and RHS में भी हमें -1 upon 10 मिला है. It means this is proved कि ये हमारे पास अगर हम दोनों रेशनल नंबर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं देन आफ्टर भी रिजल्ट हमारा सेम आएगा and also in the rational number. Now in the associative property 3 or more rational numbers can be grouped in any order for addition to get the same sum. हमारे पास अगर 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर है तो हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम ग्रुप करेंगे टू गेट अ सेम सम. दोनों ही ऐसे ऑर्डर में हमें उनको ग्रुप करना है कि हमें रिजल्ट क्या मिले, सेम मिले. सो हमने एक बार ग्रुप किया है ए अपॉन बी को प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ. तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है एंड सेकेंड में हमने RHS में क्या कर दिया है ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी कर दिया है. तो अब हमारे पास LHS और RHS आ गई, राइट. अब हमें दोनों को कंपेयर करना है. क्या दोनों ग्रुप क्या है हमारे अभी डिफरेंट है पर हमें रिजल्ट क्या सेम मिल रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज -3 upon 4 प्लस ब्रैकेट 2 upon 5 प्लस -4 upon 7 दैट इज LHS. तो सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे. तो LHS सॉल्व करने के लिए हम पहले ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे. ओके, सो 5 and 7 का LCM क्या आ जाएगा 35. 5 के टेबल में 7 टाइम्स आता है 7 इंटू 2 एंड 7 में 5 टाइम 5 इंटू -4 दैट इज 14 प्लस -20 दैट इज 14 - 20 दैट इज 6 upon 35. और हमारे पास अभी एक नंबर क्या चल रहा था -3 upon 4. सो -3 upon 4 प्लस -6 upon 35. अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहे हैं 4 and 35. अब हमें 4 and 35 का LCM लेना होगा डेट इज 140. ठीक है, LCM लेना सभी को आता है. नाउ 140 LCM लिया. 4 के टेबल में 140 कितने टाइम्स आ रहा है डेट इज 35. आपको अगर टेबल नहीं याद है देन सिंपली आप 140 को डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स में देन यू विल गेट हाउ मेनी टाइम्स इट विल कम. ओके, सो 35 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -6. नाउ -105 प्लस ब्रैकेट -24 माइनस प्लस दैट इज माइनस. तो 105 -24 दैट इज 140. माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा. तो LHS में वैल्यू हमें क्या मिल रही है -129 upon 140. सिमिलरली अब हमें RHS सॉल्व करना होगा. तो RHS में क्या है हमारा ग्रुप डिफरेंट है. ठीक है, ग्रुप हमारा सिर्फ डिफरेंट है. तो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 4 और 5 है. 4 और 5 का LCM क्या आ जाएगा 20. सिंपली पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है -7 upon 20 एंड -4 upon 7 ऑलरेडी हमारे पास है. नाउ 20 and 7 का LCM क्या आएगा 140, राइट. अब हमें फिर इसको सॉल्व करना होगा एंड सी हमारा RHS में भी क्या आ रहा है -129 upon 140. इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर फुलफिल हो रही है. दस इफ A, B and C आर 3 रेशनल नंबर. अगर A, B, C 3 रेशनल नंबर हैं तो हम LHS में कोई ग्रुप दूसरा ग्रुप एंड RHS में
दूसरा ग्रुप, कोई भी ग्रुप्स बनाकर हम उसे ऐड कर सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, now the additive identity, the sum of zero and any rational number is the rational number itself. अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का जीरो के साथ सम करते हैं तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर इटसेल्फ मिलेगा. इट मीन्स 0 + 4 इट विल कम 4, राइट. तो 0 + a/b वी गेट. और अगर हम जीरो को ऐड करेंगे रेशनल नंबर को, या रेशनल नंबर से हम जीरो को ऐड करेंगे, हमें क्या मिलने वाला है, रेशनल नंबर ही मिलने वाला है. नाउ सी फ्रॉम द एग्जाम्पल, 0 + 4/7 = 4/7 + 0. तो LHS में क्या कर रहे हैं, हम जीरो ऐड कर रहे हैं 4/7 में. सो व्हाट वी गेट, इटसेल्फ अ रेशनल नंबर दैट इज 4/7. RHS में हम रेशनल नंबर को हम जीरो से ऐड कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी विल गेट again a rational number. So LHS equals to RHS. So additive identity भी यहाँ पर prove हो गई है. Okay. Now the additive inverse. If the sum of two rational number is 0, अगर दो रेशनल नंबर का सम करने पर जीरो आ रहा है, each is called the additive inverse of others. तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के additive inverse होंगे. It means रेशनल नंबर दिया गया है आपको, इसका सम करेंगे जस्ट अपोजिट साइन वाले नंबर से, दैट इज -a/b = 0. सी दिस इज द एग्जाम्पल, 3/5 प्लस ब्रैकेट -3/5 = 0. प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, राइट. सो 3/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5. -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/5. एंड -3/5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, दैट इज 3/5. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस. ओके, नाउ सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स. इफ x and y are two integers, then subtracting y from x is the same as adding -y to x. अगर हमारे पास x और y टू इंटीजर्स हैं तो y को हम माइनस करना है x से, वो एज इट इज सेम है अगर हम -y को ऐड कर देंगे x में. सी x -y है, तो अगर हम -y + x लिख दें, दोनों क्या है, बात बराबर है. इज इट, बोथ आर द सेम. सो फॉर एग्जाम्पल, if a/b and c/d are two rational numbers, then a/b - c/d. अगर हम इस तरह करें और या हम इस तरह करें, मतलब ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन का, पर हमारा जो सेकेंड रेशनल नंबर वो किस में है, नेगेटिव में है. सो -c/d एंड माइनस प्लस इट विल बिकम माइनस. सो 2 - 1/6 दैट इज 1/6. ओके, now the properties of subtraction of rational number. Closure property, the difference of two rational number is a rational number. अगर हम दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा. सो सी फ्रॉम द एग्जाम्पल, -2/3 प्लस ब्रैकेट 4/-5. ओके, माइनस माइनस दैट इज -2/3 and minus that is plus 4/5. Now you have to take the LCM of 3 and 5, that is 15. 15 is the LCM and 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, that is 5 times. -2 × 5 plus 4 × 3 -10 plus 12/15. तो माइनस प्लस में साइन क्या हो गया, माइनस. सो 2/15 is a rational number. So if a and b are two rational number, then a minus b also a rational number. अगर दो रेशनल नंबर्स हमारे पास हैं तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा. नाउ द सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी. सब्सट्रैक्शन ऑफ जीरो फ्रॉम अ रेशनल नंबर गिव्स द रेशनल नंबर इटसेल्फ. अगेन, अगर हम रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो से तो हमें इटसेल्फ अ रेशनल नंबर ही मिलेगा. सी 0 minus, here is the minus, 0 minus 3/4, right? So 3 minus, अब LCM लेंगे, that is 4, यहाँ पर 1 है, that is 4, 1 4 times 4, that is 3 minus 0 and 3/4 is the rational number. So if a/b is a rational number, then a minus b
a अपॉन बी माइनस 0 इक्वल्स टू a अपॉन बी, तो हमें रिजल्ट में भी क्या मिलेगा, एक रेशनल